डियर स्टूडेंट, क्लास 12 इंग्लिश मीडियम में अपना चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा था, जिसके पार्ट 8 हो चुके और पार्ट 8 में वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक अपन ने पढ़ लिया लास्ट क्लास और लास्ट वीडियो में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के पार्ट 9 में अपना टॉपिक है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ an electric dipole in uniform electric field. Okay, potential, the potential energy of an electric dipole in uniform electric field, uniform electric field. Okay, yeah, uniform electric field E vector, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, ये इन्फिनिटी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू this electric field, infinity to this electric field. Okay, now in a figure there is uniform electric field E vector, electric dipole AB bring from infinity to electric field E vector in such a way कि dipole moment P vector is always remain in the direction of E vector, always remain in the direction of E vector. ये AB है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगा। और अपन इस थ्योरी में ये कह रहे हैं कि P वेक्टर और E वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब पॉइंट A पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज माइनस Q, और पॉइंट B पर पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a। P वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इन डायग्राम P वेक्टर एंड E वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। The electric dipole bring from infinity to electric field in such a way dipole moment P vector are in the direction of electric field E vector, are in the direction of electric field E vector. The force act on positive charge plus Q is Q E vector in the direction of electric field. The force act on negative charge in uniform electric field F vector equal to minus Q E vector in the opposite direction of electric field, in the opposite direction of electric field. The positive charge, to bring the positive charge from infinity to point B, the work done against electric field, this external work done taken as positive, while to bring the negative charge from infinity to point A, work done itself by the electric field. यहाँ पर इसको लाने में वर्क डन कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें एक्सटर्नल वर्क डन होगा। नाउ from infinity to point B, the positive
charge plus q and negative charge minus q are travel same distance in electric field. Therefore positive work done and negative work done are equal amount. It means at point up to point B, total work done is 0, but negative charge travel extra distance to A as compared to positive charge in the electric field. नेगेटिव चार्ज है वो किसके कंपेयर में, पॉजिटिव चार्ज के कंपेयर में 2a एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड. देन वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन ऑन नेगेटिव चार्ज, वर्क डन ऑन नेगेटिव चार्ज इक्वल टू फोर्स एक्ट ऑन नेगेटिव चार्ज इनटू एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल in E vector, electric field. Work done denoted by W. Force act on negative charge minus Q. Work done on negative charge is negative work minus Q. Extra distance traveled as compared to positive charge in electric field is 2a as shown in diagram into 2a. We know that electric dipole moment P equal to Q into 2a. Electric dipole moment is equal to the magnitude of either of charge and distance between them. Electric dipole moment is equal to the product of either of charge and distance between them, Q into 2a. Q into 2a equal to P. W equal to minus PE. Equation first. This work done is stored in the form of potential energy. This work done in the form of potential energy. U1 equal to minus PE. Equation first. This position of electric dipole is equilibrium position. We know that electric dipole moment rotate from equilibrium position to any angle theta. Extra work done or potential energy, extra work done or potential energy. The electric dipole AB rotate from equilibrium position to any angle theta. Rotate from equilibrium position to any angle theta. The extra work done और potential energy U2, ये पढ़ के आए थे अपन लास्ट टॉपिक में. U2 इक्वल टू या वर्क डन इक्वल टू PE, वर्क डन फ्रॉम rotate the electric dipole from equilibrium position to any angle theta. W इक्वल टू PE 1 minus cos theta फॉर्मूला होता है, 1 minus cos theta. दिस इज इक्वेशन सेकंड. टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू U1 प्लस U2 और U इक्वल टू U1 की वैल्यू माइनस PE और U2 की वैल्यू PE 1 माइनस कोस ऑफ थीटा. U इक्वल टू माइनस PE, इस ब्रैकेट को से मल्टीप्लाई कर दें PE से तो प्लस PE
माइनस पी ई कोस थीटा, और ये प्लस पी ई और माइनस पी ई कैंसिल, u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, और दिस इज इक्वेशन थर्ड. दिस इज इक्वेशन थर्ड. वी नाउ दैट a vector dot b vector, a vector dot b vector इक्वल टू ए बी कोस थीटा. तो p वेक्टर डॉट e वेक्टर इक्वल टू पी ई कोस थीटा, पी ई कोस थीटा. तो पी ई कोस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p वेक्टर डॉट e वेक्टर. देयरफॉर u इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर. दिस इज इक्वेशन फोर्थ. पी वेक्टर और ई वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हो गया, और स्केलर प्रोडक्ट हो गया इसका मतलब u क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. स्पेशल केसेज, स्पेशल केसेज. फर्स्ट स्पेशल केस क्या है, when p vector and e vector are parallel to each other. when p vector electric dipole moment and electric field e vector are parallel to each other, parallel to each other, it means p vector parallel e vector थीटा इक्वल टू 0, और थीटा इक्वल टू 0 तो cos थीटा इक्वल टू cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. 1 हो गई तो अपना फॉर्मूला u इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा. कोस थीटा की वैल्यू इस केस में 1, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी ई, और माइनस में है पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, इसकी मिनिमम हो गई, मिनिमम. और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम है तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टेबल पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, तो ये मिनिमम हो गई. सेकंड केस में क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड e वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जैसे p वेक्टर ऐसे हो जाए और ये e वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी. और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. देखो सेकंड केस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. Second case, when electric dipole moment p vector and electric field E vector are perpendicular to each other. It means p vector perpendicular E vector, theta equal to 90, cos theta equal to cos 90 equal to 0. Cos 90 equal to 0. P vector and E vector are perpendicular to each other, theta equal to 90, cos theta equal to cos 90 equal to 0. Then potential energy of electric dipole in this case u इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. देखो ये पोजीशन थी,
पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अपन यहाँ अकॉर्डिंग टू थ्योरी देखें तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर ट्रेवल इन सेम डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। इसका मतलब जितना पॉजिटिव वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन आर इक्वल इन अमाउंट, देन टोटल वर्क डन इज जीरो। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू जीरो। इन थर्ड केस, when P vector and E vector are anti-parallel to each other, it means theta equal to 180, cos theta equal to cos 180 इक्वल टू -1। cos 180 की वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई। तो u की जो वैल्यू है u इक्वल टू -PE cos थीटा और -PE इंटू -1, u इक्वल टू +PE, और ये एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसका मतलब अब ऑपोजिट कैसे होंगे? यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज। तो पी वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई वेक्टर आ गया। इस केस में जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ट्रेवल एक्स्ट्रा डिस्टेंस टू ए एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज -Q, और -Q है तो पॉजिटिव के लिए +Q आएगा, तो एनर्जी क्या आ जाएगी? +PE मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो इस केस में क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ओके, ये अपना टॉपिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ए चार्ज +15 माइक्रोकूलम इज गिवन टू hollow metallic sphere, hollow metallic sphere of radius 0.2 meter. Calculate electric potential. फर्स्ट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्स्ट क्या है? एट द सरफेस, सेकंड एट ए डिस्टेंस
सेंटर कर दिया, एट द सेंटर, एट द सेंटर। थर्ड, एट ए डिस्टेंस of 0.1 meter. Third, fourth, at a distance of 0.3 meter. First आंसर, एट द सरफेस। होलो मेटालिक स्फीयर है, इसका मतलब क्या है? स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए अपन ने 3 केस पढ़े थे। आउटसाइड पॉइंट्स एट द सरफेस, इनसाइड पॉइंट्स आउटसाइड, ये क्या है? सरफेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस V इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल R। यहाँ पर सिंस चार्ज Q इक्वल टू 15 माइक्रोकुलाम इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलाम, radius of metallic sphere is 0.2 meter. Put the value in given formula. V equal to value of electrostatic constant K 9 into 10⁻⁹, 9 into 10⁻⁹। Q की वैल्यू 15 into 10⁻⁻⁶, R की वैल्यू 0.2, डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 100। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक, मल्टीप्लाई अपन कर दें। 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, और 75 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 675, 675 इंटू 10⁻⁹ में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिए 10⁻⁵, और यहाँ 2 डेसिमल इधर लेफ्ट साइड में अपन मूव होंगे तो 6.75 इंटू 10⁵ वोल्ट आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस इज 6.75 इंटू 10⁵ वोल्ट। इन केस ऑफ सेंटर, सेकेंड, एट द सेंटर इनसाइड होगा। इनसाइड पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी किसके? सरफेस की, Vs। V इन इक्वल टू Vs इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल R इक्वल टू 6। अभी भी अपन ने कैलकुलेशन की है। इनसाइड पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि सरफेस पर होगा, 6.75 इंटू 10⁵ वोल्ट। थर्ड, एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.9 मीटर, 0.1 मीटर डिस्टेंस है सेंटर से, और उसकी रेडियस कितनी है? 0.2 मीटर है। तो 0.1 मीटर इज लेस देन 0.2 मीटर। इसका मतलब इनसाइड पॉइंट्स हो गए 0.01 मीटर इज लेस देन 0.02 मीटर। स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। इनसाइड पॉइंट्स हो गए। इनसाइड पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V in इक्वल टू Vs इक्वल टू 6.75 इंटू 10⁵ वोल्ट आ गया। फोर्थ केस में एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर, 0.3 मीटर इज ग्रेटर देन 0.2 मीटर, 0.3 मीटर इज ग्रेटर देन 0.2 मीटर। इसका मतलब डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस। स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इसका मतलब ये पॉइंट कहां है? आउटसाइड द सरफेस। और आउटसाइड द सरफेस का फॉर्मूला V इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल r। हेयर सिंस Q की वैल्यू चार्ज 15 माइक्रोकुलाम, 15 इंटू 10⁻⁶ कुलाम, और स्मॉल r की वैल्यू, स्मॉल r हो गया 0.3 मीटर। V इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁶ और 0.3। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। 3 कैंसिल होकर 1 आ गया।
15 में 3 से डिवीजन होगा तो 5 आ गया, और 5 आ गया। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो गया। 45 10⁻9 + 1 10⁻10, और माइनस का कितना 6 तो 10⁻4, और ये पॉइंट यहां लगाएंगे तो 4.5 इंटू 10⁻5 वोल्ट। ये ओके, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ, चैप्टर भी कंप्लीट हो।